Assalamu alaikum everyone and welcome to Knowledge Connect, an official program of the University of Faisalabad, and I'm your host Dr. Amina Mehak. So ladies and gentlemen, today we have another immense personality with us, Mr. Noman Aslam. He is coordinator, Department of Mass Communication. Assalamu alaikum sir, how are you? Walaikum Assalam. I'm good. How are you? I'm good too. Sir, being a coordinator and leading personality of mass communication, would you like to introduce your department? Yeah, sure. Thank you, first of all, for having me in your show. Introducing Mass Communication Department at the University of Faisalabad, we have started in year 2022. Okay. Right now, we are having 2 batches of Mass Communication. And the degrees we are offering at Department of Mass Communication are BS Mass Communication, BS Digital Media and Broadcast Journalism, and one associate program, ADP Mass Communication. So this is the overall outlook of the department. And Alhamdulillah, by year 2024, this department is growing. We are learning new things. We are, offering new happenings to the students. And Alhamdulillah, by the time I can say that कि हम market के लिए सिर्फ degree holder students नहीं बल्कि professionals produce कर रहे हैं. And we are very optimistic. And inshallah, coming days will be much better for the department and for the organization as So well. as we all know, with the passage of time, each and everything is going to be on digital marketing and digital era. जी. So how do you collaborate? Yes, you're absolutely right कि आज के दौर के अंदर तो जो हमारा कंटेंट है और स्पेशली ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वो मैटर करता है, वो लोगों को इम्पैक्ट करता है So हमारी basically content जो है वो shape कर रहा होता है आपके Exactly, knowledge को, exactly. आपके That's what I'm behavior saying. को, आपके way of communication को. बिल्कुल ऐसा ही है. और So- ये किस तरह से हमारी साइकी के ऊपर इम्पैक्ट करता है, Exactly. हमने इस चीज को शायद अभी उस तरह से रियलाइज नहीं किया जैसे बाकी दुनिया कर चुकी है. एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू राइट नाउ कि हम इसका जो इम्पैक्ट है, बिकॉज मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी जो है इसकी ऑब्जर्वेशन एक देता हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप देखें कि दुनिया ने ना रवायती जंगें लड़ना छोड़ दी है. Exactly. What they are doing the psychological warfare, and that's happening through media. Media. And now in the current age, that's being done through social media. तो आप कोल्ड वॉर ले लें जो रशिया और अमेरिका के दरमियान हुई है, वो आपस में लड़ नहीं रहे हैं रवायती जंगों की तरह. What they are doing, they are creating content. आप जाइए नेटफ्लिक्स पे, अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको कंटेंट मिलेगा. रशियंस जो हैं वो अमेरिकन्स को वो नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, अमेरिकन रशियंस को. सेम हैपनिंग विद द चाइना एंड अमेरिका. और यही काम इंडिया कर रहा है पाकिस्तान के साथ फ्रॉम द लास्ट 7 decades. Yes. सो दिस इज व्हाट कैन रियलाइज के हम सोशल मीडिया के ऊपर इन पर्टिकुलर आज के दौर में और जनरली कंटेंट की पावर क्या है. तो कंटेंट की जो पावर है वही एक एक्चुअल मीडिया पर्सन जो है, एक जर्नलिस्ट जो है, मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट जो है, उसको स्टडी करनी है. That's Sir, how- basically mass communication में क्या क्या domains आती हैं? आप briefly उसको पहले तो explain ये करें. बहुत अच्छा आपने सवाल Let किया me डॉक्टर clear साहबा, about it. क्योंकि मास कम्युनिकेशन को नॉर्मली क्या किया जाता है कि सिर्फ रिलेट कर देते हैं जर्नलिज्म के साथ. Exactly. दिस इज नॉट द केस एक्चुअली. Because actually we have a diverse Exactly, community. and this is one of the most professional degree programs. वर्ल्ड वाइड इसकी बहुत जबरदस्त जो है वो डायनामिक्स है. एग्जैक्टली उन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद इसको शेप अप कर रही है. व्हाट वी आर डूइंग, देखिए, mass communication is basically communication with a mass audience. Okay. And now that communication can be of any category, right? You can be doing journalism, you can be an anchor person, you can be a media person, who is providing entertainment or infotainment. So in that perspective, it's not limited to journalism only. हम advertisement के ऊपर focus करते हैं. Okay. एक स्टूडेंट जो है वो जब अपनी डिग्री कंप्लीट करके जाए तो उसको पता हो कि उसने मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स को प्लेस कैसे करना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है. Even जो एक स्टूडेंट है वो itself एक प्रोडक्ट है. एग्जैक्टली. It's a product of TUF, for Yes. example. तो वो किस तरह से वो परसीव करेगा अपने थ्रू आउट एकेडमिक जितना करिकुलम है उसको लेके चलेगा, और फिर इंडस्ट्रियल डिमांड के अकॉर्डिंगली वो किस तरह से उसको अपने आप को एक बेहतर प्लेटफॉर्म पे लेके जाएगा. बिल्कुल. तो इसको किस तरह से आप फैसिलिटेट कर रहे हैं? इसमें ये है कि हम चूंकि सबसे पहले तो हम ये करते हैं, जो हमारी मार्केट रिसर्च है कि पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री के अंदर इस वक्त ट्रेंड्स क्या हैं, यस, किस पैरामीटर पे काम हो रहा है और हमें किन किन तब्दीलियों की जरूरत है. याद रखिए, द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद का एक जो पर्सपेक्टिव मुझे बड़ा जाती तौर पे पसंद है वो ये है कि हम सिर्फ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को नहीं देखते. वी आर बिल्डिंग कैरेक्टर ऑफ दिस नेशन एज वेल. वो हमारी Exactly. प्राइम कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी Yes, है. तो जब हम उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त मार्केट में बेहतर नहीं हो रही. लेट्स टॉक अबाउट सोशल मीडिया.
जो ट्रेंड्स वहां पे चल रहे हैं, जिस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है, मैं अपने बचपन की बात करूं, वी have been used to see cartoons, we have privileged to see the morning shows जिनके अंदर कंटेंट दिया सॉरी जाता टू था. से बट आजकल तो कंटेंट यही है ना, इट्स ऑल अबाउट ब्लॉगिंग, आप Yes, उसमें that's अपने what I'm जस्ट saying. होम बेस्ड स्टोरीज बता रहे हैं एंड ऑल बिल्कुल. दिस स्टफ, So नथिंग we have to मोर change the इंटरेस्टिंग. trend. That's what I'm saying एग्जैक्टली, कि हमारे बचपन में या देयर इज हमारे नो इनोवेशन आई मस्ट से. एग्जैक्टली और हमारे बचपन में या हमने जिन चीजों को देख के हम बड़े हुए, तो मैं तो समटाइम आई फील पिटी फॉर दिस जनरेशन कि इनको कैसा कंटेंट मिल रहा है. और ऑब्वियसली कंटेंट इज फीड फॉर योर सोल. आप जिस तरह का कंटेंट कंज्यूम करेंगे, दैट विल बिल्ड योर साइकोलॉजी. आप वैसा Definitely. सोचेंगे, आप वैसा एक्ट करेंगे. एंड दिस इज नॉट साइकोलॉजिकल सेइंग, Sir, ये मेडिकली प्रूवन है. अगर हम अपने पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करें तो हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट हो गई जी. है. वी हैव प्लेंटी ऑफ अदर ऑप्शन जिससे हम जी. अपने नॉलेज को जो है वो एनहांस कर सकते हैं, एक्सप्लोर जी. कर सकते हैं बहुत सी चीजों को. हम्म. बट द मेन थिंग इज कि मास कम्युनिकेशन हमारे पास वो एक बेसिक की है जी. जिसको यूज करते हुए स्टूडेंट्स जो है वो आगे फ्लरिश कर सकते हैं. हम्म. बट लॉस हमारे पास कहाँ पे आता है, फ्लॉज हमारे पास क्या आ जाते हैं कि जब स्टूडेंट जो है वो किसी एक पॉइंट पे, जो आजकल ब्लॉगिंग के ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो आजकल एडवर्टीजमेंट के ट्रेंड्स चल रहे हैं, उनके ऊपर स्टक हो जाते हैं. बिल्कुल. आई मस्ट से कि ऐसे हमारे पास कौन से एग्जांपल्स हैं या ऐसे हमारे पास कौन से सीनियर पर्सन्स हैं, ऐसे जी. कौन से एंटरप्रेन्योरशिप लीडर्स हैं जी. जिनको हम फॉलो करके फर्दर अपनी जनरेशन के अंदर करंट में उनको इनेबल कर सकते हैं कि वो फर्दर फ्लरिश करें अपनी फील्ड में. अच्छा, ऐसा है कि डेफिनेटली हमारे यहाँ पे ना बहुत ज्यादा ये ट्रेंड फॉलो किया जाता है कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर आपको कौन नजर आ रहा है. मैं अभी स्टूडेंट्स को भी हमेशा मैं ये बल्कि रेफर करता हूँ उनको कि आप लोग जरा निकाल के देखें, जो आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले जो लोग लिख रहे थे, कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे थे, आप उनका Exactly. कंटेंट देखें. वो रिसर्च बेस्ड कंटेंट था. उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ वक्ती तौर पे ऑडियंस को कैटर करना नहीं था, बल्कि एज आई यूज द टर्म बिफोर कि कैरेक्टर बिल्डिंग, उसके लिए वो कंटेंट यूज हो रहा था. तो मैं अक्सर बच्चों को ये कहता हूं कि आप उन लोगों का कंटेंट उठा के देखें और आपको डेफिनेटली उससे ना सिर्फ न्यू ट्रेंड समझ में आते हैं, बल्कि आपको नई डायरेक्शंस मिलती हैं कि आप क्या क्या बना सकते हैं. मैं मिसाल देता हूं. सोशल मीडिया के ऊपर हमारे बेशुमार ऐसे कंटेंट मेकर्स हैं जिन्होंने कंटेंट को ना पर्सनलाइज किया, Yes. ना उन्होंने अपनी एथिकल बाउंड्रीज को कॉम्प्रोमाइज किया, Yes. बट स्टिल दे आर डूइंग सो गुड. एंड उनका जो परसेप्शन है, उनका जो काम है, वो लोगों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है. तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप ऐसे लोगों को फॉलो करें. दे शुड बी देयर रोल मॉडल्स, राइट. आपको वक्ती फेम नहीं चाहिए आपको. और जैसे आपने जिक्र किया कि मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट है, उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? उसका प्लस पॉइंट ये है, सर द मिथ इज कि आपको एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट चाहिए जी, और जी. एंटरटेनमेंट के लिए आप मैस कम्युनिकेशन को अपना वो की एलिमेंट पकड़ के एंड गो फॉर इट. जबकि बिल्कुल. इसके थ्रू हम लोग बहुत सी अचीवमेंट्स कर सकते हैं, बहुत से गोल्स ऐसे हैं जिनको Exactly, अचीव किया exactly. जा सकता है. मोर ओवर, स्टूडेंट्स जो मैथ्स कम्युनिकेशन में खुद को इनरोल करते हैं, आपके पास एक प्लान्ड करिकुलम है, वो एचईसी से रिलेटेड है. बिल्कुल. हमारे पास जो करिकुलम है, that has been designed by the guidelines of HEC. उसमें हम क्या करते हैं या हमारी डोमेन में क्या चीजें आती हैं कि हमने वक्त के साथ साथ जो तब्दीलियां Exactly. रिक्वायर्ड हैं वो हम करते हैं. और जैसे कि अभी सब जानते हैं कि जो एक हमारा मेन स्ट्रीम या ट्रेडिशनल मीडिया है, वो हमारे सोशल मीडिया से जो है ना वो बहुत ज्यादा दब गया है. अब उसकी व्यूअरशिप वैसी नहीं है. सर इवन So- तो हम कोई ज्यादा पुरानी बात भी नहीं करते, अगर हम इतनी बात कर लें कि प्री कोविड ही जी, जस्ट हम जी. देख लें और उसको हम पोस्ट कोविड के साथ Exactly, भी दुनिया बदल कंपेयर गई करें, उसके बाद. दुनिया दुनिया बदल बदल गई है. अब उसमें यह है कि हमने करिकुलम को भी उस तरह से अपडेट किया. अब जब Okay. आपकी ऑडियंस शिफ्ट हो गई सोशल मीडिया पे, यस. तो अब जो कंटेंट प्रोड्यूसर है उसको भी शिफ्ट होना पड़ेगा, उसको उस एंगल से सोचना पड़ेगा. मैं आपको रिसेंट एग्जांपल देता हूं. अमेरिकन प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है हर उनके इलेक्शन से पहले, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले, और बड़ी सिग्निफिकेंट हैपनिंग होती है. इस साल उनकी जो प्रेसिडेंशियल डिबेट है उसको फॉक्स न्यूज के ऊपर गालिबन 19 मिलियन के करीब व्यूज मिले, जो कि एक उनका मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल है. वही ब्रॉडकास्ट, वही प्रेसिडेंशियल डिबेट डोनाल्ड ट्रंप अपने एक्स अकाउंट से करते हैं तो उसको 176 मिलियन व्यूज मिलते हैं. सो ये केस स्टडी बन चुका है दुनिया के अंदर कि अब सोशल मीडिया ने मेन स्ट्रीम मीडिया को कैसे सरपास किया, राइट. सो उसी पैरामीटर पे हमने अपना करिकुलम डिजाइन किया. बिकॉज़ इट्स ग्लोबली सर्कुलेटिंग. यस. अब हमने अपने करिकुलम के अंदर डिजिटल मीडिया को ऐड किया, हमने उन टेक्निकलिटीज को ऐड किया जिनको सीख के, जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया था कि डिजिटल मीडिया वो कंटेंट जो आज उनको मार्केट में जाके कुछ अर्न करने के, कुछ
दुनिया के अंदर, सोसाइटी के अंदर कुछ तब्दीली लाने के लिए उनको काबिल बना सके. दैट्स what we are trying to But do. sir, at the same time, we have also the barriers. Yes. So what are the crises for the communication department as well? आप कहते हैं कि mass communication के अंदर you are offering multiple disciplines, जी. 2 to 3 disciplines. जी. Then definitely there are some crises as well. तो वो किस तरह से आप उन barriers को face करते हैं? Students को किस तरह से आप enable करते हैं? देखें, आप एक टाइम पे बच्चों को graduate करके जी. उनको डिग्री प्रोवाइड कर देंगे. लेटर एजेस में जाके वो किस तरह से खुद को अप टू डेट करेंगे? आके आप उनको ऑलरेडी प्लान्ड कोई प्लेटफॉर्म दे रहे हैं बिल्कुल, या उनको आपका ऑलरेडी ट्रेन बड़ा कर रहे क्रिटिकल हैं? क्वेश्चन है, क्योंकि हम अक्सर ये गिला करते हो कि हमारी एकेडमिक लाइफ के अंदर अगर हमें ये मौका मिल जाता तो ये फर्क पड़ जाता, Exactly. ये मौका मिलता तो ये फर्क पड़ जाता. आई मीन, these students, this lot of mass communication students, they are blessed that Yes. they are at University of Faisalabad, जहां पे देखें उनको स्टूडियो यूनिवर्सिटी के अंदर मिलता है, एफएम Okay. स्टेशन यूनिवर्सिटी के अंदर मिलता है, Yes. टीवी स्टेशन इनफैक्ट जो उनका Yes. अपना मीडिया हाउस है हमारा, उसके ऊपर उनको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. फिर हमारे जो इवेंट्स होते हैं हम उनके ऊपर उनको एंगेज रखते हैं, सो दैट वो प्रैक्टिकल जो अपना नॉलेज है वो गेन कर सकें. सो ये सारी चीजें बेसिकली उनको मार्केट के लिए तैयार कर रही हैं. तो फाइनल प्रोडक्ट Okay. जो हम यूनिवर्सिटी से प्रोड्यूस करेंगे वो इंशाल्लाह ताला जब मार्केट में लोगों के सामने बैठेंगे, अपना जो कंटेंट है वो उनके साथ शेयर करेंगे, अपनी स्किल सेट उनके साथ शेयर करेंगे, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगा. हाँ, उसके लिए जरूरी क्या है, और जो जिस तरह आपने चैलेंजेस की बात की, Yes, sir. कि हमें अब वक्त जो है ना, टेक्नोलॉजी ये इंसान की बायोलॉजिकल चेंज से तेज हो चुकी हुई है. Sir, हमारे evolution. एग्जैक्टली अब आप यहां से उठ के बाहर जाते हैं, आपको जो अपडेट्स पता चलती हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ये अंडरस्टैंड कर सकें कि इसको आपने अडॉप्ट करना है या नहीं करना. बिल्कुल. बिकॉज आप अगर वो सोचने में टाइम कंज्यूम करते हैं, दुनिया Sir, अडॉप्ट कहीं ना करके आगे कहीं निकल आपको जाती है. जब एक न्यूज मिल रही है या कहीं ना कहीं कोई न्यू कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट भी है. बिल्कुल है, आप बिल्कुल है. आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस का जो लेकिन फेज जो है मैं उसको बात लेके कर रहा हूँ चलना है. ना डॉक्टर आमना, वो ये है कि आप उस कंटेंट को एनालाइज करें कि इज इट गुड फॉर यू और बैड. उतने में आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो आगे निकल जाते हैं. सो हमारे पास ना वक्त कम है और हम टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस कर रहे हैं एवरी डे, हम उसमें आगे जा रहे हैं. उसी के अंदर होता ये है कि कुछ चीजें जो हमें नहीं चाहिए, जो हमें फिल्टर करनी है, वो हमारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता. मैस कम्युनिकेशन का स्टूडेंट, एक मीडिया लिटरेट स्टूडेंट जो है, उसको फायदा क्या होता है? उसको फायदा ये होता है कि जब वो कंटेंट देखता है ना, वो आम लोगों से जल्दी उसको फिल्टर कर पाता है. उसको उसका पता होता है व्हाट आई हैव self-analysis टू ज्यादा है. कंज्यूम. एग्जैक्टली, उसका Okay. एनालिसिस बेहतर होता है. अब मिसाल के तौर पे आप मेरे सामने 10 खबरें रखिएगा, तो मैं उन 10 खबरों को सबसे पहले उनके डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर जज करूंगा कि क्या ये ऑथेंटिक है, Okay. क्या ये फेक तो नहीं है. Definitely. लेकिन एक आम आदमी उसको खबर को अगर खबर की तरह कंज्यूम कर गया तो उसका इम्पैक्ट ले जाएगा वो, राइट. और इस तरह के बेशुमार मौके आए जिंदगी में, जब खबर देखते, कंटेंट देखते ही हमने उसको उस एंगल से देखने की कोशिश की कि पहले उसकी ऑथेंटिसिटी हम जो है वो कंफर्म कर लें. सो ये सबसे बड़ा फायदा. देखें, जब हमारे ऊपर सबसे ज्यादा बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है ना जिस दौर में, तो हमने उस इंफॉर्मेशन को अगर अच्छे से फिल्टर कर लिया, आई एम टॉकिंग अबाउट From different sources. एग्जैक्टली, अब आई एम टॉकिंग अबाउट मास कम्युनिकेशन लिटरेट एज एन इंडिविजुअल, नॉट एज अ Okay. प्रोफेशनल. Okay. देखिए, उसने अपनी फैमिली को भी तो लुक आफ्टर करना है ना, उसने एक नई जनरेशन जो है उसको भी उसको भी- तरबियत देनी है, उसको भी बिल्कुल. परवान चढ़ाना है. तो जब वो कंटेंट को समझेगा, जब वो ये समझेगा कि किस तरह का कंटेंट जो है मेरे बच्चों के लिए बेहतर है, जब वो ये समझेगा कि मुझे इनको क्या चीज दिखानी है जिससे इनकी पर्सनैलिटी जो है वो ग्रूम होगी, तो वो शायद एक सोसाइटी में ओवरऑल चेंज आ सकता है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मास कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली अ डिग्री जो आपको प्रोफेशनली तैयार करती है, बट एज एन इंडिविजुअल इट ग्रूम्स यू, राइट. और वो चीज आपको आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर नजर आना शुरू हो जाती है. So what are the developmental changes related to the broadcasting? उसको आपके फील्ड में जो है डोमेन में उसको हाईलाइट किया जाता है, स्टूडेंट को जो है एंटरटेन किया जाता है इससे रिलेटेड. बिल्कुल. देखें, ब्रॉडकास्ट के हवाले से जहां तक आपने जिक्र किया, दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल चुकी है कि अब एक जमाने में जब टेलीविजन पाकिस्तान में शुरू हुआ तो आप रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स नहीं कर सकते थे. बिल्कुल. आपको अगर ड्रामा भी लोगों को दिखाना था तो आप लाइव दिखाते थे, राइट. तो अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ दुनिया जो है वो एक डिवाइस के साथ अपना पूरा ब्रॉडकास्ट जो है वो कंट्रोल कर रही होती है. ऐसे है. एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू एजुकेट इन आवर स्टूडेंट्स, कि वो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच्ड हैं नहीं है, दे शुड बी केपेबल इनफ
कि वो अपने ओन पे अपना कंटेंट प्रोड्यूस कर सकें, अगर उनके अंदर कोई स्किल है वो उसको यूटिलाइज कर सकें, टेक्नोलॉजी को किस तरह इस्तेमाल करना है, जो ब्रॉडकास्ट के जितने मीन्स हैं उनको वो किस तरह उनकी बेस्ट प्रोडक्टिविटी के साथ वो यूज कर सकते हैं। सो ये हमारी कोशिश रहती है डिपार्टमेंट के अंदर कि उनको हम उससे अवेयरनेस जरूर देते रहें। So, sir, what sets Department of Mass Communication apart from the different departments at TUF? जी देखें, हर डिग्री, हर एजुकेशन, उसकी डोमेन अलग है, उसके पैरामीटर्स अलग हैं। तो मैं ये समझता हूँ तमाम बहुत अहम है, उनकी हर हमारी फील्ड ऑफ लाइफ के अंदर सिग्निफिकेंस है, बट व्हाट मास कम्युनिकेशन हैज डिफरेंस फ्रॉम अदर्स के इस डिग्री प्रोग्राम के अंदर आपको मल्टी डायमेंशनल किस्म की जो है वो ऑप्शंस मिलती हैं। जैसे मैंने जिक्र किया, आप मार्केटिंग, उसके अलावा Sir, आप in short, डिजिटल मीडिया। if we have a doctor, allied जी health जी sciences का कोई जी जी बच्चा है, तो अगर उसने अपना भी क्लिनिक रन करना है, तो अगर उसको एडवर्टाइजमेंट नहीं है, तो फिर उसको कुछ नहीं है। एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ही शुड नो हाउ टू कम्युनिकेट विद हिज टीम, विद द पेशेंट्स, Yes. हाउ टू मार्केट हिज प्रोडक्ट व्हाटएवर और सर्विस ही इज ऑफरिंग। सो ये तमाम की तमाम जी, देखिए दुनिया कम्युनिकेशन के गिर्द घूम रही है। आप दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स उठा के देख लें, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी थी वो लीडर बना है, जिसकी Yes. स्पीच अच्छी थी वो लीडर बना है, जो लोगों में जाके चार बातें सुना सकता था, उनको कन्विंस कर सकता था, वो लीडर बना है। और बहुत सारे लोग, बड़े काबिल लोग ऐसे हैं जो अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाए लोगों को, और ऑब्वियसली लोगों ने उनका आइडिया बाय नहीं किया। सो दिस इज व्हाट कम्युनिकेशन कैन डू, राइट? सर, व्हाट यू थिंक, किस तरह से मास कम्युनिकेशन एक स्टूडेंट की करेक्टर बिल्डिंग कर सकता है और उसको किस तरह से इनकरेज कर सकता है? बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, दे हैव गट्स, दे हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, बट उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, जिस वजह से वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे खुद को जो है प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो आपकी यूनिवर्सिटी में, आपके डिपार्टमेंट में उनको किस तरह से मोटिवेट किया जाता है, स्टे कनेक्टेड रखा जाता है टू द एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री डिमांड? किस तरह से उनका प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं आप? सबसे पहले तो ये होता है, देखें हम स्टूडेंट को एनालाइज करते हैं Okay. उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, व्हाट ही लाइक्स। देखें, अगर आप एक मछली को इस बुनियाद पे जज करेंगे ना कि वो दरख्त पे कैसे चढ़ती है, तो माजरत के साथ आपको खुद को एनालाइज करने की जरूरत है। यू शुड फोकस एंड पॉइंट आउट द एबिलिटी ऑफ एवरी स्टूडेंट। हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है और उसकी एबिलिटी मुख्तलिफ है। तो जब हम उस एबिलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं तो हम उसको पॉलिश करने की कोशिश करते हैं एट फर्स्ट Definitely. प्लेस। देन देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप बार बार बच्चों को मौके देते रहें, कहीं ना कहीं वो सीख जाते हैं। मेरी जिंदगी में, मैं आपको ये पर्सनल एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में राय रखी कि दे कैन नॉट डू दिस थिंग, बट बाय द टाइम व्हाट आई लर्न कि उन्होंने मेहनत की और उस अपनी कमजोरी को जो है ना वो अपनी उसी को कामयाबी overcome बनाया, नहीं होने मैं दिया। कन्वर्ट Yes. किया उसमें। तो वो मेरे लिए एक लर्निंग थी कि आप जजमेंट नहीं पास कर सकते। एनीवन कैन डू एनीथिंग अगर वो कमिटेड है, अगर वो उस चीज के ऊपर जो है ना उसका नजरिया क्लियर है। अब हम जब बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देते हैं रिपीटेडली, तो वो चीजें जो उनके अंदर कमियां होती हैं, जो उनको पॉलिश करने की जरूरत होती है, वो उसका उनको मुनासिब मौका मिलता है। और वो स्टूडेंट फिर जब यहाँ से यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर इंशाल्लाह जाएंगे, तो वो एक उनके अंदर जो मार्क है उस चीज का, जो एक उनको हमने पर्टिकुलर एक डायरेक्शन दिया ना, वो इंशाल्लाह ताला प्रोफेशनल लाइफ में वाज़ेह तौर पे दिखाई सर, देगी। बीइंग अ कोऑर्डिनेटर, आपका इंटरेक्शन जो है वो डायरेक्ट फैकल्टी मेंबर से भी है, स्टूडेंट से भी है, और अदर इनके मैनेजमेंट से भी है। सो व्हाट यू थिंक, इन योर डोमेन ऑफ द मास कम्युनिकेशन, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा किस तरफ जाता है? आइदर इट इज रिलेटेड टू द पब्लिकेशन, आइदर इट इज रिलेटेड टू द मूवी मेकिंग और समथिंग एल्स, और जर्नलिज्म? व्हाट यू थिंक? अच्छा देखिए, इंसानी फितरत है, इंसान ना फेम को पसंद करता है। हर इंसान चाहता है लोग उसे पसंद करें, लोग उसके बारे में बातें करें। अब मीडिया स्टडीज के अंदर आप ज्यादातर स्टूडेंट्स का रुझान देखेंगे कि वो चाहते हैं हम कैमरे के आगे आए, लोग हमें जाने, लोग हमारे नाम से वाकिफ हों, हमारे काम से वाकिफ हों। ये एक इंसानी जिबिलत है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन मैस कम्युनिकेशन आपको बेशुमार ऐसी चीजें ऑफर करता है जिसमें आप बिहाइंड द कैमरा रह के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके। तो ट्रेंड तो ऑब्वियसली ज्यादा यही होता है कि लोग बीइंग एन एंकर, बीइंग ए रिपोर्टर, वो कोशिश करते हैं कि वो अपना कैरियर परस्यू कर सकें। लेकिन बहुत अच्छे जो हैं प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, डीओपीज, ये तमाम लोग इस फील्ड से निकलते हैं। इवन मार्केटिंग की फील्ड के अंदर बेशुमार लोग निकलते हैं। सो लिमिटेड कुछ नहीं है। फिर हमारी कुछ सोसाइटी के पैरामीटर्स हैं, जैसे भी आपने जिक्र किया, मूवी मेकिंग के अंदर बड़ा लंबा सफर हमने तय किया है। एक एक्सेप्टेंस सोसाइटी में क्रिएट हुई है कि जो हमारी परफॉर्मिंग आर्ट्स है ना, ये भी एक ऐसी चीज है जिसको बकायदा पढ़ा जाना चाहिए, समझा Exactly. जाना चाहिए। Yes, sir. और एक जमाना था कि ये काम करने वाले लोगों को सोसाइटी में ज्यादा पसंद नहीं किया जाता था, लेकिन आज वो सेलिब्रिटीज हैं।
सो Yes. ये जो एक्सेप्टेंस आई है सोसाइटी में, इसके बाद ऑब्वियसली लोगों का ट्रेंड इस तरफ बढ़ा है एंड वो दे आर वेरी डेफिनेटली मच मास कम्युनिकेशन के थ्रू उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है प्लेटफॉर्म मिला, उनको। यस, एंड दे आर अगेन, जब देखें, जब जिस फील्ड के अंदर आपको पढ़े लिखे लोग नजर आएंगे, हम्म। काम करते हुए लोग जो हैं वो इंटेलेक्चुअल्स होंगे, सोसाइटी के वो लोग होंगे जिनको लोग पसंद करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो पेरेंट्स हैं उनका भी ट्रस्ट डेवलप Because होगा, there वो are बच्चों को number उधर of people रेफर कि करेंगे। वो अपने स्पेसिफिक डोमेन, either they are related to engineering, related to medical department or something else, कहीं ना कहीं वो अपने आप को इंगेज कर रहे हैं मैस कम्युनिकेशन में। वो अपने आप को मनवा किस तरह से रहे हैं, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस किस तरह से करवाए हैं थ्रू द वीडियोस, रील्स। तो इस पे हम बात करेंगे कि कंटेंट किस तरह का होना चाहिए। आपके ख्याल से एक अच्छा कंटेंट मेकर जो है उसको किन किन चीजों को, किन किन क्वालिटीज को जो है वो हाईलाइट रखना चाहिए? अच्छा, आपने बिल्कुल ये सही पॉइंट जो है ना रेज किया है कि फील्ड आपकी कोई भी हो, आपके पास आ जाके मीडियम एक है लोगों तक पहुंचने का, दैट इज Exactly. कम्युनिकेशन, मास और वो कम्युनिकेशन, वो राइट? अभी उस लेवल को क्रॉस नहीं किया नहीं किया उन्होंने। उन्होंने। उनकी तो अब भी कैरेक्टर बिल्डिंग अब वो होनी है। नेचुरली अपने उस टैलेंट के ऊपर रह के जितना वो कम्युनिकेशन को समझते हैं वो कंटेंट डेवलप करते हैं। एट टाइम्स क्लिक हो जाता है, एट टाइम्स जो है वो कंटेंट वैसा क्वालिटी का नहीं बन पाता। बुनियादी चीजें जो किसी भी कंटेंट क्रिएटर को देखनी है, सबसे पहले तो उसको अपनी टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट करनी है कि आप जिन लोगों को ये कंटेंट दिखाना चाहते हैं वहां पे कल्चरली, इमोशनली वो चीज एक्सेप्टेड है या नहीं है। ओके। बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो हमारी सोसाइटी में आप डिस्कस करने की कोशिश करें, अगले 2 मिनट में आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है, वो आपको अपने Exactly. रिस्क पे करना पड़ेगा, चाहे उसका सोसाइटी की बेहतरी से ही ताल्लुक क्यों ना हो, बट हमने कल्चरली, Definitely. इमोशनली Yes, sir. और कुछ ग्राउंड फैक्ट्स को देखना होता है। इसी तरह से जब आप टारगेट ऑडियंस अपनी सिलेक्ट करते हैं, तो फिर आपने ये देखना है कि उस कंटेंट को आपने प्लेस कैसे करना है मार्केट के अंदर। वक्त बहुत मैटर करता है। हम अक्सर जो है, आप मार्केटिंग में भी ये चीजें, जो लोग जानते हैं वो बहुत अच्छे से ये चीज समझते हैं कि प्रोडक्ट को प्लेस कहाँ करना है, उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, ये Okay. बहुत मैटर करती है। कंटेंट भी, कौन सी बात कहाँ कहनी है, कौन सी बात कितनी कहनी है, और उससे भी ज्यादा अहम चीज याद रखिए, जो चीज सबसे ज्यादा लोग इग्नोर कर जाते हैं ना कंटेंट क्रिएशन में, जिसपे मैं बहुत फोकस करता हूँ, क्या कहना है बहुत मैटर करता है, क्या sir. नहीं कहना कहीं It's ज्यादा ज्यादा मैटर important. करता है। Yes, sir. लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जो नहीं कहना होता लोग वो कह जाता है, तो Sir, उससे वक्ती comments, तौर पे शायद वो कमेंट्स में आती वही चीजें हैं। एग्जैक्टली और लोग ये समझते हैं कि शायद इससे हमें व्यूज मिल रहे हैं, बट मेरे ख्याल में वो सोशल फैब्रिक उससे डैमेज हो रहा होता है। सोसाइटी में ओवरऑल जो एक इम्पैक्ट पॉजिटिविटी का आना चाहिए, वो उससे वो इम्पैक्ट जो है ना negative वो इफेक्ट हो रहा Yes, होता है। sir. सो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ से हों, वो इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि देखें, आप सबसे पहले जो भी चीज बनाई ये सोचेंगे ये आपके अपने बच्चों ने देखनी है, ये आपके अपने घर वालों ने देखनी है। सो अगर आप उनके लिए वो चीज जायज समझते हैं, फिर 100 बिस्मिल्लाह जरूर बनाएं, लेकिन सिर्फ फॉर द सेक ऑफ व्यूज, फॉर द सेक ऑफ फेम, Entertainment and अगर आप fame. सिर्फ ये काम कर रहे For हैं the तो sake of money. बेसिकली हाँ, वो फिर आप सोसाइटी को ऐसा डैमेज देते जा रहे हैं Yes, sir. जिसका लॉन्ग रन में बहुत नुकसान होगा। सर, अगर हम जर्नलिज्म की बात करते हैं या फिर हम मास मीडिया की बात करते हैं, कहीं ना कहीं इसमें थ्रेट्स भी हैं, कहीं ना कहीं इसमें जो है बेनिफिट्स के साथ साथ इसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स इस चीज पे भी आते हैं कि कल कला को उनके फैमिलीज की तरफ से कुछ इश्यूज आ जाते हैं या उनको पर्सनल इश्यूज आ जाते हैं। इसको किस तरह से ओवरकम किया जा रहा है और आप अपने स्टूडेंट्स को एट द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद किस तरह से एंगेज करते हैं और इनकरेज करते हैं कि इन चैलेंजेस को जो है वो फेस किया जा सके? अच्छा, चैलेंजेस तो नो डाउट बहुत हैं इस फील्ड में। जब आप सच बोलने की कोशिश करते हैं ना, वो आप घर में भी करें तो आपको बड़े चैलेंजेस आएंगे, ये तो आप दुनिया को सच बता रहे हैं। तो जब आप सच बताएंगे, ये एक्सपेक्ट ना करें कि लोग चुप करके सुन लेंगे। और उसकी प्राइम एग्जांपल आपने रिसेंटली पाकिस्तान में देखी होगी कि जिस तरह से मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, और ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। सर, मैं नोट तो इन पाकिस्तान, अगर हम ओवरऑल ग्लोबली भी बिल्कुल, बात करें, बिल्कुल। हर जगह यही है। लेकिन ये है कि देखें, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे सूरत हाल ये है कि वहां पे जो लॉज बनाए गए जर्नलिस्ट के लिए, जो उनको प्रोटेक्शंस दी गई, प्रिविलेजेस दिए गए, उन पे अमल हो रहा है। हमारे यहाँ लॉज मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो वो सारे लॉज जो है वो अपलिफ्ट हो जाते हैं, वो आपको इम्प्लीमेंटेड नजर नहीं आते। सो इन चैलेंजेस के होते हुए व्हाट वी कैन डू कि हमने एक तो देखें, उन्हीं इदारों को, उन्हीं लोगों को जो इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, हमने उनको भी लूप में लेके उनको सेंसिटाइज करना है कि ये जो जर्नलिज्म है या ये जो इंफॉर्मेशन पास ऑन करने का जो एक तरीकाकार है, ये कहीं ना कहीं उनके ही फायदे में है। आप देखिए, इस फैब्रिक को, इस फैक्टर को आप निकाल देंगे ना सोसाइटी से, तो वो लोग भी आप तक क्या पहुंचाना चाहते हैं वो आप तक कभी भी नहीं आएगा। राइट सर, अगर हम ये देखते हैं, सपोज कि जैसे कहते हैं कि मास कम्युनिकेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है, इट्स नीड ऑफ द आवर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर यूनिवर्सिटी इसको ऑफर भी नहीं कर रही।
जी एक तो बुनियादी वजह ये है, एज आई सेड, कि ये बहुत प्रोफेशनल डिग्री है। इसको जब आपने कैटर करना होता है, आपको मल्टी डायमेंशनल फैकल्टी चाहिए, ओके। आपको बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग चाहिए जिनको प्रैक्टिकल फील्ड भी का जो है एक्सपीरियंस वो भी मौजूद हो, एकेडमिक्स का भी हो। तो ऑब्वियसली एक तो इसको एग्जीक्यूट करना जो है थोड़ा ट्रिकी है बाकी तो डिग्री यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स। ऑफ फैसलाबाद में अगर कोई इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं तो वो किस तरह से खुद को एनरोल कर सकते हैं? देखिए बहुत आसान है, हमारे ऑनलाइन पोर्टल्स के ऊपर दे कैन अप्लाई फॉर द एडमिशंस। मैंने आपको डिग्री प्रोग्राम के शुरू में बताए। दे कैन विजिट आवर कैंपसेस एज वेल, और ओके। यहाँ पर आके वो जो ग्राउंड पे फैसिलिटीज है सबसे पहले तो वो ऑब्जर्व करें। हम्म। आफ्टर दैट जब वो अब तसल्ली हो उनको, वो चाहें इसको एज अ कैरियर परस्यू करना, तो हमारे एडमिशन ऑफिस के अंदर हर तरह से उनकी फैसिलिटेशन के लिए लोग मौजूद हैं। वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे एंड द रेस्ट विल बी टेक केयर बाय द यूनिवर्सिटी। सो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, मैं एक चीज जिसको मैं कंक्लूड करते हुए स्टूडेंट्स के लिए भी एक मैसेज दूंगा, और मैं ये चाहूंगा कि ये एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि हमारे यहाँ सोसाइटी में ना खबर के पीछे लोग भागे हैं हमेशा, और खबर को जानने के लिए, खबर तक पहुंचने के लिए हमेशा लोगों के अंदर एक क्यूरोसिटी रही है। लेकिन वो खबर ऑथेंटिक है या ऑथेंटिक नहीं है है? या नहीं है ये भी मैटर नहीं करता, और फिर वो खबर किस जनरेट कैसे की सोर्स गई। है? यस। हम होता क्या है, और ये बात बड़ी कॉमनली हम कोट करते हैं क्लासरूम्स में भी, कि एक कुत्ते ने इंसान को काट लिया ना, ये खबर नहीं है, लेकिन अगर इंसान ने कुत्ते को काट लिया बहुत बड़ी खबर है। सो इस चीज को माइंड में रखते हुए बहुत सारे लोग जो है वो अनयूजुअल हैपनिंग्स की तलाश में रहते हैं। यस। उसमें कोड ऑफ एथिक्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। देखिए एक जर्नलिस्ट जो है ना, वो पाबंद है उस कोड ऑफ एथिक्स का। वो लोगों की प्राइवेसी ब्रीच नहीं कर सकता, ओके। वो कुछ आपके जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको ब्रीच नहीं कर सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप आईएएस फील्ड में आप जरूर, अगर आप चाहते हैं कि आप सोसाइटी में कोई पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, आपको फेम पसंद है, आपको पसंद है कि लोग आपका काम एक्नॉलेज करें, दिस इज द फील्ड फॉर यू। लेकिन उसके साथ साथ ये कोड ऑफ एथिक्स बड़ा जरूरी है खबर की वो आपके तलाश में। रिलीजियस हैं, वो यस, आपके दैट लैंग्वेज दैट वुड बेस्ड हैव है? बीन एनीथिंग। देखें एथिक्स जो है ना उनका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, एग्जैक्टली, उसका किसी लैंग्वेज इंसानियत से से कोई वो ताल्लुक है। नहीं है। तमाम दुनिया के मजाहिब जो है ना वो आपको अखलाकियात का दर्स देते हैं। देते हैं, दुनिया का बिल्कुल। कोई मजहब नहीं ह्यूमैनिटी। कहेगा कि झूठ यस। बोलना अच्छी बात है। यस सर। सो वो चीज अपने माइंड में रखिए कि दिस इज द फील्ड जहां पे आपको कोड ऑफ एथिक्स जो है वो फॉलो करना है। नंबर टू, एक बहुत मशहूर अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, उनसे किसी ने पूछा कि आप जर्नलिस्ट क्यों बने हैं। उन्होंने कहा क्योंकि मुझे किसी जर्नलिस्ट पे भरोसा नहीं था। सो दिस इज अनदर थिंग। जब आप इंफॉर्मेशन के लिए किसी और के ऊपर यकीन नहीं कर पाते, और आपको चाहिए ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, आपको चाहिए वो सोर्स जहां से आप ऑथराइज्ड हो इस चीज को कहने के कि हाँ ये बात जो है ये फैक्चुअल है और फैक्चुअल। ये यस। फैक्चुअल नहीं है, तो फिर आपको खुद उस काबिल बनना पड़ेगा। फॉर दैट मैं लोगों को खुद ये ऑफर करता हूँ और उनको इनवाइट करता हूँ, वो बच्चे जो जानना चाहते हैं कि दुनिया के अंदर परसेप्शंस कैसे बनाए जाते हैं, अपनी बात को कैसे पहुंचाया जाता है दूसरों तक, उनके लिए दिस इज द आइडियल प्लेटफॉर्म। ओके। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में आइए, मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में वट एवर डिग्री प्रोग्राम सूट्स यू उसके लिए अपने आप को एनरोल कीजिए। Thank you so much for coming, sir. माय Thank you प्लेजर, so माय much for sharing your thoughts with us. So, ladies and gentlemen, today we had a great personality with us, Mr. Noman Aslam. And as we all know, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें गाइड किया कि मैस कम्युनिकेशन किस तरह से फ्लरिश कर सकती है, स्टूडेंट्स किस तरह से खुद को इनरोल कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं इन दिस डिपार्टमेंट, और द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद किस तरह से बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को ना सिर्फ इंगेज कर रहा है बल्कि उनकी पर्सनालिटी मेकिंग में उनकी एक प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन उनको जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। मोर ओवर उनकी स्किल एनहेंसमेंट पे वर्किंग की जा रही है। सो स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।